Hello students. Now today in current electricity we will study meter gauge. So meter gauge is used to measure the value of unknown resistance. Examination में क्वेश्चन भी आता है कि explain how to determine the value of unknown resistance using meter gauge or using Wheatstone meter gauge. ये चैप्टर पे आपको प्रैक्टिकल भी है. So today we'll see how to determine the value of unknown resistance using meter gauge. First we'll see the construction of meter gauge. It consists of a rectangular wooden board. एक लकड़े का बोर्ड होता है, rectangular wooden board. So let us consider this is a rectangular wooden board on which metallic strips are fixed. So let us consider these are the three metallic strips. कॉपर या स्टील वगैरह के मेटालिक स्ट्रिप्स होते हैं जो ये रेक्टेंगुलर बोर्ड पर फिक्स होती हैं. सो लेट अस कंसिडर दीज आर द टू मेटालिक स्ट्रिप्स विच आर फिक्स्ड ऑन द रेक्टेंगुलर वुडन बोर्ड. S1 and S2, these are the two metallic strips which are fixed on the rectangular wooden board. Now, the third strip is fixed in such a way that we get two gaps. तीसरी स्ट्रिप को इस तरह फिक्स करते हैं कि यहाँ पर आपको दो गैप्स मिलते हैं. So third strip is fixed in such a way that we get two gaps. यह थर्ड स्ट्रिप, इसको इस तरह तरतीब देते हैं कि आपको दो गैप मिलते हैं. दिस इज राइट गैप एंड दिस इज लेफ्ट गैप. नाउ 1 मीटर वायर इज फिक्स्ड बिटवीन द 2 पॉइंट्स. ये लेट अस कंसीडर A and B, these are the 2 points. A and B, these are the 2 points between which 1 meter or 100 centimeter wire is fixed. A और B के अक्रॉस में 1 मीटर वायर फिक्स की गई. यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर इज फिक्स्ड बिटवीन द 2 पॉइंट्स. इसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर. अब यहाँ पर एक स्केल होती है, यहाँ पर एक ऐसी स्केल होती है, मीटर स्केल, जिससे आप इसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं. बैलेंसिंग पॉइंट 0, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, तरह 20 सेंटीमीटर, 30, 40, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 70, 80, 90 और इस तरह ये 100 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है. नाउ बिटवीन द पॉइंट A and B, a cell along with one-way key and rheostat is connected. इसके अक्रॉस में एक A और B के अक्रॉस में एक सेल की और रियोस्टेट कनेक्ट किया गया है. यह रियोस्टेट. सो फ्रॉम पॉइंट ए इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ सेल, नेगेटिव इज कनेक्टेड टू वन वे की, सेकंड पॉइंट ऑफ वन वे की इज कनेक्टेड टू द फिक्स पॉइंट ऑफ द रियोस्टेट. रियोस्टेट के ये दो फिक्स पॉइंट है. एंड फ्रॉम वेरिएबल पॉइंट इट इज कनेक्टेड टू बी पॉइंट. फ्रॉम बी पॉइंट इट इज कनेक्टेड टू वेरिएबल पॉइंट ऑफ द रियोस्टेट. यह है रियोस्टेट. Now let us consider there are two gaps, right gap as well as left gap. In right gap we will connect resistance box or variable resistance. right gap में एक resistance box कनेक्ट करेंगे and in the left gap we will connect unknown resistance. जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको मालूम करना है वो रेजिस्टेंस लेफ्ट गैप में कनेक्ट करेंगे. सो लेट अस कंसीडर दिस इज द अननोन रेजिस्टेंस हुज वैल्यू वी हैव टू डिटरमाइन. यह है अननोन रेजिस्टेंस X. व्हाट इज X? अननोन रेजिस्टेंस. नाउ फ्रॉम सेंटर पॉइंट it is connected to
गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बताता हूँ, करंट वगैरह फ्लो हो रहा है या नहीं. एंड फ्रॉम गैल्वेनोमीटर इट इज कनेक्टेड टू जॉकी. फ्रॉम गैल्वेनोमीटर इट इज कनेक्टेड टू जॉकी. ये जॉकी. एंड लेट अस कंसिडर दिस इज द पॉइंट वेयर वी गेट द बैलेंस इन लेंथ और नल पॉइंट. देखिए इसका कंस्ट्रक्शन इस तरह है. इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर वुडन बोर्ड on which 3 strips are fixed. S1, S2, these are the 2 metallic strips, and the third strip is fixed in such a way that we get 2 gaps, right gap and left gap. In the right gap, resistance box is connected, and in left gap, unknown resistance X is connected. Now let us consider this is the meter scale which is fixed between these 2 points. Now a uniform metallic wire of 100 centimeter is fixed between the 2 points A and B. Now from point A it is connected to positive of cell, negative is connected to one way key, second point of one way key is connected to fixed point of the rheostat, and from variable point it is connected to B point. Or in other words we can say between the point A and B a cell along with key and rheostat is connected. This is about the construction of मीटर बीज और व्हीट स्टोन मीटर बीज. अब इसके बाद हम इसका वर्किंग देखेंगे. सो द एम ऑफ दिस इज टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस. ये अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको मालूम करना है. समटाइम द क्वेश्चन मे बी आस्क्ड ड्रॉ द नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ व्हीट स्टोन मीटर बीज. तो इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे. फिगर ड्रॉ करने के बाद इसकी लेबलिंग भी देंगे आप. सो लेबलिंग अगर देना है तो ये लेबलिंग के लिए आप ये लिखेंगे कि व्हाट इज दिस एक्स. एक्स इज नथिंग बट अननोन रेजिस्टेंस. अननोन रेजिस्टेंस. व्हाट इज आर. ये आर जो है ये रेजिस्टेंस है. यहाँ हम रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर रहे हैं. सो आर बी इज नथिंग बट रेजिस्टेंस बॉक्स. रेजिस्टेंस बॉक्स. Then S1, S2, S3, these are the strips, metallic strips. Then K, key, E, battery या cell, RH, rheostat. Then J, jockey. जॉकी शॉफ नहीं, जे एक जॉकी एक की रहती जो आप ये वायर प्लस स्लाइड करेंगे तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बताता है. व्हाट इज जी. जी इज नथिंग बट गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर. सो ड्रॉ द नीट एंड लेवल सर्किट डायग्राम ऑफ मीटर बीज. तो आप ये डायग्राम सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसकी लेबलिंग देंगे. 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है. ड्रॉ द नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ व्हीट स्टोन मीटर बीज. तो ये सर्किट डायग्राम और उसकी लेबलिंग. नाउ वी हैव सीन कंस्ट्रक्शन, देन विल सी द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ दिस मीटर बीज. नाउ if you want to find the value of this unknown resistance, first we'll remove the suitable resistance of this resistance box. ये रेजिस्टेंस बॉक्स में से हम कुछ सुटेबल रेजिस्टेंस निकालेंगे. जैसा कि अननोन रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू मालूम करना है तो हम ये रेजिस्टेंस बॉक्स में से सुटेबल रेजिस्टेंस निकालेंगे. एंड वी विल कीप दिस जॉकी एट पॉइंट ए. गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन टू वन साइड. देन वी विल keep this jockey at point B. The galvanometer will show deflection to opposite side. It means the circuit is working properly. जब आप ये जॉकी को A पॉइंट पे रखेंगे, गैल्वेनोमीटर एक साइड डिफ्लेक्शन बताएगा. जब जॉकी को B पॉइंट पे रखेंगे, गैल्वेनोमीटर अपोजिट साइड को डिफ्लेक्शन बताएगा. देन वी कैन से द सर्किट इज वर्किंग प्रॉपर्ली. तब आप उसके बाद एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट विल टेक द सुटेबल रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस रेजिस्टेंस बॉक्स. We will keep jockey at point A. Galvanometer will show deflection to one side. We will keep jockey at point B. Galvanometer will show deflection to opposite side. But when we will slide the jockey on the wire, ये जो यूनिफॉर्म वायर है,
अगर जॉकी को इस पर घुमाते हैं, when we'll slide the jockey on this wire at one particular length we will get null point. एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर गैल्वेनोमीटर आपको नल डिफ्लेक्शन बताएगा. सो विच इज नथिंग बट द बैलेंसिंग पॉइंट और बैलेंसिंग लेंथ. सो ये अननोन रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस में जो लेंथ मिलेगी वो रहेंगी Lx. Lx इज नथिंग बट लेंथ अक्रॉस अननोन रेजिस्टेंस. ये इसके अक्रॉस में रेजिस्टेंस बॉक्स के अक्रॉस में जो लेंथ मिलेंगी दिस इज नथिंग बट Lr, लेंथ अक्रॉस रेजिस्टेंस बॉक्स. इसके अक्रॉस में अननोन रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो लेंथ मिलेंगी वो रहेंगी Lx. रेजिस्टेंस बॉक्स के अक्रॉस में जो लेंथ मिलेंगी वो रहेंगी Lr. नाउ व्हेन you will get the null point, it means it is balance. The network is balance. Wheatstone नेटवर्क में भी देखे आते हैं आपने, जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं बताएगा, when the current across the galvanometer will be 0, then we can find the balancing condition for Wheatstone network. उसी तरह यहाँ पर भी गैल्वेनोमीटर जब नल पॉइंट बताएगा, नल डिफ्लेक्शन बताएगा, तो हमको इसके लिए बैलेंसिंग कंडीशन मिलती है. जैसा कि Wheatstone नेटवर्क में देखे थे कि लेट अस कंसीडर दिस रेजिस्टेंस P, दिस इज अनदर रेजिस्टेंस Q, और ये रेजिस्टेंस था यहाँ पर S, यहाँ पर था R, PQRS, इसके बीच में गैल्वेनोमीटर था, राइट. उसके लिए बैलेंसिंग कंडीशन थी P/Q. इसके लिए बैलेंसिंग कंडीशन क्या थी? P/Q, P/Q इज इक्वल टू S/R, S/R. इन Wheatstone नेटवर्क वी हैव सीन दिस. अब यहां पर देखिए, यहां अननोन, ये रेजिस्टेंस P इंस्टेड ऑफ रेजिस्टेंस P, यहां पर क्या है? यहां पर अननोन रेजिस्टेंस है, तो P की बजाय यहां पर क्या है? अननोन रेजिस्टेंस X है. P की बजाय क्या है? यहां पर अननोन रेजिस्टेंस X. यहां Q की बजाय क्या है? रेजिस्टेंस बॉक्स है, और उसमें से जो सुटेबल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं वो क्या है? R. अब यहां पर S और R की बजाय यहां पर क्या है? एक यूनिफॉर्म वायर है. यहां पर इसकी बजाय क्या है? एक यूनिफॉर्म वायर है, और ये बैलेंसिंग पॉइंट है, गैल्वेनोमीटर इसके अक्रॉस में कनेक्ट किया गया है. लेकिन यहां पर जो लेंथ मिल रही, यहां पर जो लेंथ मिल रही S की बजाय यहां पर जो लेंथ मिल रही वो क्या है? Lx. यहां पर जो लेंथ मिल रही इसके अक्रॉस में वो क्या है? Lr. सो Wheatstone नेटवर्क का यूज करके हम इसके लिए इक्वेशन जो डिराइव करेंगे वो रहेंगी P/Q इज इक्वल टू S/R. यहाँ है P/Q इज इक्वल टू S/R. P/Q इज इक्वल टू S/R. अगर ये Wheatstone नेटवर्क का इसके लिए यूज करते हैं तो इसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे X/R. दिस इज नथिंग बट रेजिस्टेंस अक्रॉस लेंथ AD, रेजिस्टेंस अक्रॉस AD, AD के अक्रॉस में रेजिस्टेंस, AD के अक्रॉस, यह है A पॉइंट, यह है D पॉइंट, AD के अक्रॉस में रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस अक्रॉस DB, रेजिस्टेंस अक्रॉस DB, रेजिस्टेंस अक्रॉस DB, ये B पॉइंट है, A या ये इसको हम B पॉइंट ले रहे, तो रेजिस्टेंस अक्रॉस DB. अब यहां देखिए, रेजिस्टेंस इज नथिंग बट, आपको ये भी मालूम है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, and it is inversely proportional to area of cross section. Or we can also write resistance R is equal to rho into L upon A, where rho is nothing but specific resistance. आपको ये मालूम है कि रेजिस्टेंस ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, and resistance is inversely proportional to area of cross section. So we can also write R is directly proportional to L and it is inversely proportional to area of cross section A. Or we can also write R is equal to rho L upon A. Or we can also write R is equal to rho divided by A into L. अब यहां देखिए, R क्या है? रेजिस्टेंस है, rho क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, rho एंड A ये कांस्टेंट है, सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. अब यहां देखिए कि रेजिस्टेंस अक्रॉस AD, रेजिस्टेंस अक्रॉस AD क्या होगा? RAD इज इक्वल टू रो अपॉन A इंटू लेंथ अक्रॉस AD. रेजिस्टेंस अक्रॉस DB क्या होगा?
resistance across dB is nothing but rho divided by A into length across dB. Therefore, this formula we can write. इसके लिए हम ये फॉर्मूले को इस तरह लिख सकते हैं कि x डिवाइडेड बाय r, x डिवाइड बाय r इज इक्वल टू रेजिस्टेंस अक्रॉस AD डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस अक्रॉस dB. x divided by r is equal to resistance across AD divided by resistance across dB. So x divided by r is equal to, यहाँ देखिए resistance across AD, resistance across AD is nothing but rho upon A, rho divided by A into length across AD, length across AD, rho upon A, length across AD divided by रेजिस्टेंस अक्रॉस dB. रेजिस्टेंस अक्रॉस dB क्या है? रो डिवाइडेड बाय A इंटू लेंथ अक्रॉस dB. अब यहां पर देखिए कि रो डिवाइडेड बाय A गेट कैंसल. देयरफॉर फ्रॉम दिस वी कैन राइट x डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू लेंथ अक्रॉस AD. AD के अक्रॉस में जो लेंथ है वो कितनी है? Lx. देयरफॉर लेंथ अक्रॉस AD इज नथिंग बट Lx डिवाइड बाय लेंथ अक्रॉस dB. dB के अक्रॉस में लेंथ कितनी है? Lr. देयरफॉर लेंथ अक्रॉस dB इज नथिंग बट Lr. सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट x डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू Lx डिवाइडेड बाय Lr. और वी कैन ऑल्सो राइट x इज इक्वल टू, ये r अगर इधर चल जाता है सो दिस विल बी द मल्टीप्लाइड फैक्टर. सो x इज इक्वल टू r इंटू Lx डिवाइडेड बाय Lr. ये सफिक्स है L सफिक्स x, L सफिक्स R, लेंथ अक्रॉस अननोन रेजिस्टेंस, लेंथ अक्रॉस रेजिस्टेंस बॉक्स, एंड यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस. अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम करने के लिए फॉर्मूला है x इज इक्वल टू r इंटू Lx अपॉन Lr. सो अगर क्वेश्चन पूछा ड्रॉ एक्सप्लेन हाउ टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस यूजिंग व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज. व्हीटस्टोन नेटवर्क कल देखे थे, ये व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज है. सो उसके लिए फार्मूला होगा कि x डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू Lx डिवाइडेड बाय Lr, या अननोन रेजिस्टेंस का फार्मूला है x इज इक्वल टू r इंटू Lx डिवाइडेड बाय Lr. सो व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर very low value of resistance. It is also used to measure quantities such as galvanometer, resistance, inductance, capacitance, etc. So this is about the Wheatstone meter bridge. So Wheatstone नेटवर्क के जो एप्लीकेशन थे उसमें मीटर ब्रिज है. मीटर ब्रिज में अननोन रेजिस्टेंस कैसा मालूम करते हैं वो देखें. उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर यूजिंग मीटर ब्रिज, और इट इज ऑल्सो नोन एज केल्विन्स मेथड.